Okay, so this is the video in which I will be explaining to you the business plan template for the startup business. That is the template I have already emailed to you, and I will be explaining to you each section of the business plan and what does each of the section mean and how do you attempt that section. So I am on the page 1 of the business plan template, in which you have the list of contents, which is the table of contents. First section is the executive summary. Second section is the company description and market research. Third section is the products and services. Fourth section is the marketing plan. Fifth section is the operational plan, and the sixth section is the appendices. So let's start from section number 1, which is the executive summary, which is on the page 2 of the business plan template. एग्जेक्टिव समरी में आपने क्या करना है नाउ, जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माई प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो कि एवरी क्वेश्चन एवरी सेक्शन you will find a list of questions that you need to answer. Similarly, executive summary maybe I have mentioned 4 bullets, 4 points which you need to answer. Although professionally, एग्जीक्यूटिव समरी में क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं लिए जाते बल्कि एक पैराग्राफ दिया जाता है. बट एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ड्यूरिंग आवर क्लास कि मैं इस तरह से आपको बिजनेस प्लान टेम्पलेट दूंगा जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा वो हर चीज़ का हर सेक्शन को फिल करना. सो हर सेक्शन को मैंने क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें. एंड इफ़ यू हैव टू सबमिट दैट बिजनेस प्रपोजल टू समवन, तो वो आप इजीली आपको पता हो कि कौन कौन से की क्वेश्चंस होते हैं जो कि उनको आंसर करना किसी भी बिजनेस प्लान में बहुत ज़रूरी होता है. सो रादर दैन राइटिंग अ समरी विदाउट इवन एक्सप्लेनिंग टू यू कि उस समरी में क्या होना चाहिए, आई हैव लिस्टेड डाउन द क्वेश्चंस so that you can answer each question and that will become a summary of your business plan. So executive summary में first question is an overview of your business idea, और मैंने आगे mention भी किया हुआ है bracket के अंदर 1 or 2 sentences, and that is pretty self-explanatory. The second question is a description of your product or service. What problem are you solving for your target customers? ये वाली एक्सरसाइज इंटरेस्टिंगली आपने जो असाइनमेंट नंबर 1 मैंने आपको दी थी तब भी की थी. एंड आई टोल्ड यू के द असाइनमेंट नंबर 1 इज़ कॉन्सेप्चुअल एंड दैट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू टू नो कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से करना है, इफ़ यू रिमेंबर. और वो मैंने इसीलिए कहा था बिकॉज नाउ यू विल ऑब्जर्व कि नाउ द थिंग हैज़ गॉट रियल एंड नाउ यू हैव टू आंसर दैम with reference to your finalized business idea. So question number 2 is the description of your product and service. उसमें आपने कैसे describe करना है? First you have to mention the problem you are going to solve, and second you have to mention आपके target customers. प्रॉब्लम पहले आपने वही है जो प्रैक्टिस है असाइनमेंट नंबर 1 वाली वही करनी है. कैसे करनी है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि फर्स्ट यू हैव टू मेंशन कि आपका जो बिजनेस आइडिया है उसमें आप कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. और आई हैव एक्सप्लेन इन द क्लास कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का आसान तरीका ये है कि आप पहले उसमें से एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एक्सप्लेन कर दें. एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है कि यू हैव टू फॉर एग्जांपल यू से कि मैंने अगर फूड बिजनेस है तो केक बनाने हैं और केक के अंदर the entrepreneurial aspect to the cake is that I will be using imported ingredients. So imported ingredients is the entrepreneurial idea in your business product. So you will say कि problem क्या है उसमें. Problem is कि these days there are a lot of variety of cakes and bakeries available on the internet or in the city, but not everyone is using imported ingredients or the quality ingredients. And my entrepreneurial idea or the problem I am going to solve is to introduce the imported ingredients, high quality ingredients, to make the cake.
So that is the problem solving thing you are doing through your entrepreneurial idea. What are your target audience? Target customers क्या होते हैं? Target customers वो लोग होते हैं जिनको आप expect कर रहे हैं अपना product या अपनी service sell करने के लिए. इसमें आगे मैंने बड़ी डिटेल के अंदर टारगेट ऑडियंस के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए, जो कि मैं अभी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो सेक्शन आएगा. तो टारगेट कस्टमर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का, वो भी अभी हम आगे जाके बताऊंगा मैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर प्रपोज टारगेट मार्केट. टारगेट कस्टमर पहले आपने एक्सप्लेन करने हैं, उसके बाद टारगेट मार्केट एक्सप्लेन करनी है. दैट मीन्स के हु आर योर आइडियल कस्टमर्स. आइडियल कस्टमर्स अगेन आर समहाउ सिमिलर टू द टारगेट कस्टमर्स. अगेन आपने उसको एक्सप्लिसिटली अभी इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रिपीट करना है, एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल कि मैं पहले आप कहेंगे कि इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स आई विल बी targeting or focusing on the people who are very much interested in, who have sweet tooth, or the group of people aging between 18 to 25. Random example दे रहा हूँ. तो age group क्यों आपने select किया? Because those are the people who are very fond of eating bakery products or cakes, or who are very fond of ordering online the bakery items. So आपने उस सेक्शन के अंदर भी यही एक्सप्लेन करना है. और प्रपोज टारगेट मार्केट, हु आर योर आइडियल कस्टमर्स, उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन आप इस सेक्शन में कर सकते हैं. हाउ के द रीज़न आई हैव सेलेक्टेड the group age group of 18 to 25 is because those people are the university students who are very much interested or very much fond or very much aligned towards ordering food online, and they are very much interested in tasting newer foods, newer fast foods. And that is the reason I believe that those audience, yeah, those group of people will be more inclined towards buying my product. मैं आपको बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के अंदर आई विल बी जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडियाज़ ऑफ द कॉन्सेप्ट. बिकॉज टारगेट मार्केट कैसे सेलेक्ट की जाती है, टारगेट मार्केटिंग कैसे की जाती है, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ऑल्दो इट्स मेंशन इन द बिजनेस प्लान टेम्पलेट. बट आपका जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है विच इज़ BUSN 280 मार्केटिंग के अंदर, उसमें आपकी पूरी मैडम ने पूरा 2 चैप्टर्स इसी के ऊपर आपको एक्सप्लेन किए होंगे, अभी करने होंगे. सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट एरिया, बिकॉज वो फिर ओवरलैपिंग हो जाती है एक ही कंटेंट की दोनों कोर्सेज के अंदर. सो आई एम प्रिटी श्योर अगर आपको नहीं कराया हुआ अभी तक, इट इज़ फाइन, जितनी समझ आती है आप उतना लिखते हैं. और अगर आपको कराया हुआ तो दैट इज़ गुड फॉर यू कि आपको ऑलरेडी अवेयरनेस होगी कि टारगेट मार्केट कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो कि मैं अभी आगे एक्सप्लेन और भी थोड़ा करूँगा अगले जो जहाँ पे टारगेट मार्केट का सेक्शन आएगा. देन द कॉम्पिटिशन, योर कॉम्पिटिशन एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स योर बिजनेस. अगेन यू माइट ऑब्जर्व कि दीज आर द रिपीटिंग क्वेश्चन. अभी आगे जब आप जाएंगे बिजनेस प्लान के सेक्शन में या अगले सेक्शंस में, तो यू विल ऑब्जर्व के बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है. और वो बार बार चीज़ रिपीट होने का क्या मतलब होता है कि जिस इंसान ने आपका बिजनेस प्लान पढ़ना होता है, दे नीड टू नो and they can refer to any section of your business plan and get to know the overview of your business idea. So the repetition is usually deliberately done in a business plan ताकि जो भी कोई बंदा जिस भी सेक्शन में जाए उसको ओवरव्यू मिल जाए आपके प्रोडक्ट या सर्विस का. So you will feel that every section has a couple of repeating questions. That is, you don't have to worry about that, you just have to repeat the same thing again. Copy paste करना again I would not suggest. You just have to rephrase the same thing again and again, जो कि आप I am pretty sure अपनी इंटरव्यूज असाइनमेंट में भी कर रहे होगे कि एक ही चीज़ को फ़र्क तरीक़ों से एक्सप्लेन करना, ताकि जो जिस सेक्शन में कोई भी रीड करना चाहे तो उसको प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएशन फीचर क्या है, कस्टमर क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, वो आपके हर किसी भी सेक्शन को देख के उसमें पता लग जाए, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर ये वाली बातें रिपीट हो रही होंगी. सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग इन द सेक्शन 4 ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी कि आपका कंपटीशन क्या है एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स योर बिजनेस.
who are up against you and what unique selling proposition will help you succeed. अगेन आपने यूनिक पहले अपने कंपेरेटर्स का मेंशन करना है कि आपके अगेन कोई क्वेश्चन मुझसे करेगा कि मेरे जी प्रोडक्ट आइडिया इतना यूनिक है कि इसके कोई कंपेटिटर्स ही नहीं है, तो इट इज़ टोटली फाइन. मोस्टली एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ के कंपेटिटर्स नहीं होते बल्कि सब्सटीट्यूट्स होते हैं. सो इन दैट सिचुएशन यू विल मेंशन द सब्सटीट्यूट्स. फॉर एग्जांपल जब ऊबर आइडिया आया था या अमेज़ॉन आइडिया आया था तो तब उसका कोई भी कंपेरेटर नहीं था, तो तब क्या थे, सब्सटीट्यूट है. फॉर एग्जांपल आपके ऊबर वाला जो आइडिया था उस वक्त सब्सटीट्यूट क्या था, नॉर्मल टैक्सी सर्विस, कि आप जाते थे स्टॉप पे खड़े होते थे एंड यू यूज टू हायर अ टैक्सी सर्विस, या पाकिस्तान के अंदर रिक्शा स्टॉप पे जाके, वैन के स्टॉप पे जाके, बस के स्टॉप पे जाके आप खड़े हो जाते थे. तो बस स्टॉप्स और द बस सर्विस वाज द सब्सटीट्यूट एट दैट टाइम. और अब ऊबर जब इंट्रोड्यूस हो गई थी तो फिर उसके कंपेरेटर्स इमर्ज होना शुरू हुए थे, जिसमें करीम है, चीते है और इस टाइप की सर्विसेज थी. सो यू डोंट हैव टू फील कि अच्छा this is irrelevant to me because competition means the existing substitutes which your existing target customers are already utilizing. यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन क्या होती है, अगेन मैं आपको डिटेल में, मार्केटिंग की डिटेल में नहीं बताना चाह रहा बिकॉज अगेन फिर वो मैडम कहेंगी कि जी आप सारा मेरी बातें उनको पहले बता देते हैं, या फिर अगेन इट इज़ नॉट रीजनेबल टू teach a subject that is already been specialized and separated from other subjects. So मैं आपको ओवरव्यू, बार बार मैं कहता हूँ कि मैं ओवरव्यू ज़रूर देता हूँ मगर मैं इन डेप्थ इसलिए नहीं जाता बिकॉज उनकी इन डेप्थ जितनी डिटेल एंटरप्रेन्योरशिप में रिक्वायर्ड है सिर्फ मैं उतनी ही दूंगा, और आगे जाके आपको मार्केटिंग के कोर्सेज के अंदर इनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. सो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन के बहुत सारे नाम होते हैं. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होती क्या है, मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इट इज़ द प्रपोजिशन का क्या मतलब होता है. प्रपोजिशन, द वर्ड प्रपोजिशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रपोज से. प्रपोज इज प्रपोज को ऑल्टर करके वर्ड प्रपोजिशन बनाया गया है. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या मतलब है कि व्हाट आर यू प्रपोजिंग टू योर कस्टमर्स. यूनिक सेलिंग कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से यूनिकली सेल कर रहे हैं प्रपोज करके. प्रपोज किसको आपने करना है, कस्टमर्स को करना है. सो दिस इज द simple way I have figured out to explain this concept कि unique selling preposition is the proposal an organization is doing to its customers कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये यूनिक चीज़ है जिसको वो कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. सो आई होप यू विल बी एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट कि यूनिकनेस ऑफ योर प्रोडक्ट और द सर्विस इज़ द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. इसको एब्रीविएशन बहुत कॉमन होता है मार्केटिंग में विच इज़ द यूएसपी. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को यूएसपी कहा जाता है एब्रीविएशन यूज़ करके. सो यूएसपी क्या होता है, यूएसपी का ऑल्टरनेट हमने वर्ड क्या पढ़ा था क्लास में, entrepreneurial idea is the unique selling proposition. Entrepreneurial idea itself is the USP जिसके अराउंड आप काम कर रहे हैं. तो USP को आप entrepreneurial idea भी कहते हैं. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को डिफरेंशिएशन फीचर भी कहते हैं बिकॉज दैट इज द फीचर दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स. सो आपका डिफरेंशिएशन फीचर कैन बी यूज्ड एज अ यूएसपी बाय द कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट. यूएसपी को आप जो हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन भी किया था और डिस्कस भी किया था, जो कि क्या था हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें आपके जो फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं, एक ऑर्डर विनर्स एंड ऑर्डर क्वालिफायर्स. यस, दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आपके ऑर्डर विनर्स जो होते हैं वो आपके यूएसपी भी होते हैं या एंटरप्रेन्योरियल आइडिया भी होता है. सो एक ही चीज़ के कितने सारे नाम हमने इस वक्त डिवाइस कर लिए. डिफरेंशिएशन फीचर, यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड ऑर्डर विनर. ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है.
और आपने जब जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो उसी आइडिया को, यानी कि आपका एंटरप्रेन्योरियल आइडिया हर दफ़ा रिपीट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है, यूएसपी का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर्स को। ऑर्डर विनर क्या होता है, जो कंपनी खुद सोच रही है कि हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ यूनिक डालनी है। सो वो सोचने के प्रोसेस को कहते हैं ऑर्डर विनर्स। प्रपोज करने के प्रोसेस को कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। सोचने के प्रोसेस को एक और भी चीज़ कहते हैं विच इज़ द एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, जो हमने आइडिया जनरेशन वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। सो हर चीज़ को काम एक ही है मगर पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, इसलिए नाम भी डिफरेंट है। सो व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का भी वही आंसर है जो कि आपका एंटरप्रेन्योरियल आइडिया आंसर है, जो जो आपका डिफरेंशिएशन फीचर का आंसर है। सो दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी के ऊपर मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स आप पहले लिखेंगे, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखेंगे, फिर उन सारे आंसर्स को कंपाइल करके मैंने एक नीचे पेज नंबर 3 के ऊपर खाली पेज छोड़ा हुआ है और उसकी हेडिंग दी हुई है एग्जीक्यूटिव समरी। सो वहाँ पे आपने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर थे उनको कॉपी करके नीचे पेस्ट करके, यहाँ पे कॉपी पेस्ट अलाउड हो जाएगा कि आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कॉपी करके पेस्ट करके एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना देना है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ या फिर अगर आप ये बिजनेस प्लान कहीं पे सबमिट करें तो आपको रीडर जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी आपकी सिंगल पैराग्राफ में पढ़ ले। सो वी आर कमिंग टू द सेक्शन नंबर 2 नाउ, दैट इज़ द कंपनी डिस्क्रिप्शन एंड मार्केट रिसर्च वाला सेक्शन। कंपनी डिस्क्रिप्शन में पहला सेक्शन इज़ द कंपनीज मेंट्रा। इफ़ यू रिमेंबर, इंटरेस्टिंगली जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी तो वो इसीलिए मैंने दिखाई थी क्योंकि वो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुए थे। आई हैव मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन टू यू and reminded you that the videos you were watching were all based on the entrepreneurship concepts. So company's mantra जो है किस वीडियो में था, वो गाय कावासाकी की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन हुआ था। वाई योर मीनिंग शुड एग्जिस्ट, कंपनीज मैंट्रा के अंदर 3 बुलेट्स लिखे हुए हैं ABC के नाम से। पहला बुलेट इज वाई योर मीनिंग शुड एग्जिस्ट, वाई डू यू थिंक योर कंपनी शुड एग्जिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर कंपनी। सो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम फूड बिजनेस की बात कर रहे हैं, केक्स की बात कर रहे हैं, तो वाई योर मीनिंग शुड एग्जिस्ट पहला क्वेश्चन इज। सो यू कैन आंसर इट इन अ वे के द मीनिंग I want to propose, yeah, the meaning of my company should exist because there is there are there are very less quality cakes in the market. ये अगेन जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, अगेन हर किसी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चंस फ़र्क होगी विच इज़ टोटली फाइन। आपको जो फीलिंग आ रही है उस क्वेश्चन से उसका आपने अपने तरीके से आंसर करना है बिकॉज these questions are subject to your understanding and the feel of your own organization. If you are the CEO of your company, so you have to figure out on your own कि मैंने इन questions को किस तरह से handle करना है। and business plan में these are the general questions और इनके wrong answers नहीं होते। every answer is the right answer if you have a feeling connected to those answers. So why your meaning should exist, my feeling to my business or my idea is because there are very less quality cakes in the market. Second is why you should exist. मेरा आंसर होगा the reason I should exist is because there is a gap of quality cakes in the market and I want to fulfill that gap. I want to offer the solution to that gap. And what is the solution to that gap? Providing quality cakes with quality imported ingredients. नीचे सी में मैंने एग्जांपल दी हुई है हेल्दी फास्ट फूड ऑलवेज लो प्राइस। सो आपने थर्ड में कोई एग्जांपल अपना मेंट्रा मेंशन करना है। मेंट्रा मैंने आपको बताया था क्या होता है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडियन वर्ड जो कि है मंत्रा। मंत्रा क्या होता है, मंत्र होता है। मंत्र क्या होता है, कोई भी शॉर्ट वर्ड होता है जो आप बार बार रिपीट करते हैं। मंत्र याद है अगर आपने सुने होंगे या फिर आपने टीवी पे आते हैं कि बार बार कोई चीज़ को चैंट करने को मंत्र कहते हैं। सो इट शुड बी सो शॉर्ट दैट इट कैन बी चैंटेड। हमारी फॉर एग्जांपल FC का ऑल्दो इट्स नॉट अ मैंट्रा बट इट्स अ मोटो बट इट साउंड्स लाइक अ मैंट्रा, बाय लव सर्व वन अनदर।
सो इतना सा छोटा सा होता है जो कि आप रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखी हुई है, ऑलवेज लो प्राइस किसका मैंट्रा है? वॉलमार्ट का है। सो हेल्दी फास्ट फूड किसका मैंट्रा है? आई एम नॉट श्योर, मे बी सबवे का है, मगर कितना शॉर्ट, क्रिस्प और इजी टू अंडरस्टैंड है। सो इस तरह से आपने भी अपनी कंपनी का कोई मैंट्रा इन्वेंट करके वहाँ पे मेंशन करना है। Second question in the company description and market research section is the target market. You might have observed कि मैंने पहले से ही बोला था कि target market का section हर section में repeat हो रहा होगा. So again you have to explain your target market again in this section. You will cover this in depth in the marketing plan section. Here briefly explain who your target customers are. Again मैंने ये explanation में mention किया हुआ है कि आपने आगे marketing section में भी you have to explain it, but यहाँ पे भी explain करें. Again the reason I have already told to you is कि कोई भी बंदा कभी भी किसी भी section में जाके अगर review करना चाहे तो he should be able to cover or know your target market or your business idea. So the third point in the second section is the industry and secondary market research section starts here. मैंने ये mention किया हुआ है bold करके क्योंकि this is the most important section of your business plan. और इस business plan के अंदर मैंने mention किया हुआ है description में describe your industry and what makes your business competitive or any information relevant to your business idea plan slash industry. Include your secondary research at least 20 pages under this heading. आपने इस heading के अंदर 20 pages का marketing secondary research का section fill करना है. मैंने questions भी दिए हुए, sample questions दिए हुए, आपने इनको आंसर करना है तो इनको आंसर कर दें या फिर अपने आपने खुद रिसर्च करके खुद 20 पेजेस फिल करने हैं आप वो कर दें, मगर 20 पेजेस मिनिमम होने चाहिए. मैंने क्या एग्जांपल दी हुई है कि टोटल साइज ऑफ द योर इंडस्ट्री या फिर योर कंपेटिटर्स एंड देयर डिटेल्स. आप अपने कंपेटिटर एक सबसे आसान एक वन ऑफ दीज easiest ways of filling the 20 pages is that you start finding your competitors or you start finding your substitutes and उन substitutes के बारे में लिखना शुरू कर दें, पैराफ्रेज शुरू कर दें. कॉपी पेस्ट अगर किया तो आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे. ये मैं आपको वीडियो के 22 मिनट के ऊपर 22 मिनट 30 सेकेंड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ कॉपी पेस्ट की सेकेंडरी रिसर्च तो आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे बिकॉज यू विल बी सबमिटिंग योर असाइनमेंट ऑन टर्निटिन मूडल के ऊपर, और टर्निटिन के अंदर प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाता है और प्लेजरिज्म सिर्फ इन्हीं 20 पेजेस के ऊपर ही मोस्टली चांसेस हैं. अगर ऑब्वियसली किसी और सेक्शन में हुआ तो ऑब्वियसली वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि हर किसी का बिजनेस आइडिया अपना होगा. तो आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि आप अपने बिजनेस प्लान भी कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं से. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज क्वेश्चंस कस्टमाइज्ड हैं. और अगर इसमें भी प्लेजरिज्म हुआ तो आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे बिकॉज प्लेजरिज्म इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन दिस कोर्स दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. सो सेक्शन में आप इंडस्ट्री का साइज़ बता सकते हैं, कंपेटिटर बता सकते हैं, एनी इंफॉर्मेशन स्लैश फैक्ट रेलिवेंट टू योर बिजनेस आइडिया प्लान इंडस्ट्री, या फिर ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, इज इट ग्रोइंग और श्रिंकिंग, या फिर total size of your target market and what share is realistic for you to obtain, या फिर trends in your target market. ये वाले सारे मैंने इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है. आपने नोटिस करेंगे कि बुलेट पॉइंट्स में मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि इन सेक्शंस मैंने हेडिंग भी दी हुई है फॉर एग्जांपल वाली, ताकि आप इन सेक्शंस को रिव्यू करके और इनके आंसर्स आप अपने मुताबिक दे सकें या फिर अपनी रिसर्च करके जो आपको मिलता है 20 पेजेस में आपने वो लिखना है विदाउट प्लेजराइजिंग, विदाउट कॉपी पेस्टिंग. रेफरेंसिंग आपको जैसी आती है वैसी दे दें. रेफरेंसिंग का मैं कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं एक्सप्लेन कर रहा बिकॉज अगेन आप अभी सारे सेकंड ईयर के कोर्स पढ़ रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी 100 में भी सिखाई जाती है, WRCM 1 और 2 में भी सिखाई जाती है रेफरेंसिंग. और अगर आपको कहीं से कुछ रेफरेंसिंग नहीं आती तो जैसी भी आपको आती है वैसी कर दें, यानी कि जिस वेबसाइट से उठाया उस वेबसाइट का कॉपी करके लिंक भी पेस्ट कर देंगे
तो दैट इज़ इवन इनफ। बस मेन मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो ये है कि यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट्स, या फिर जौन से भी जर्नल्स या आर्टिकल से आप कंटेंट ले रहे हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली पैराफ्रेज्ड या फिर एक्सप्लेन्ड इन योर ओन वर्ड्स। So this was about the second section. This आज का वाला lecture हमने, I think it is pretty exhaustive already to understand and to grasp this concept. So section number 1 and section number 2 हमने आज के lecture में, इस lecture में cover किया है, and I wish you best for completing the section number 1 and section number 2. Section number 3, which is the instructions for your products and services, वो हम next lecture में cover करेंगे. Thank you very much.